Good morning, students. So, last week I have given you a video from the YouTube explaining the basic concepts of heat. That is our chapter number 4. So, today we will discuss this chapter from our textbook. So, see page number 35. That is our first page of the chapter. In chapter number 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. Okay. So, animal fiber are rich in proteins and cotton clothes are rich in cellulose. Okay. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. क्यों पहनते हैं? Because woolen clothes keeps us warm. Okay. What it does? It does not let the heat of our body to escape from our body. Okay. And it maintains the body temperature. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. क्यों? क्योंकि जो light colored clothes होते हैं they are the best reflector of heat. Okay. So this gives us a feeling of coolness and also it helps in the exchange of heat and temperature of our body with the surrounding. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. Okay. So in winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? Okay, हम हमेशा हमको coldness और hotness हम feel करते हैं. In winter we usually feel cold in the dark and shady places, but when you come out in the sun तो you will feel warm, है ना. तो वैसे और समर में क्या होता है कि if you are in the house still you feel hot. Okay, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसी चलाते हैं. तो हमको कैसे पता होगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड और हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? Okay, in this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. 4.1 Hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Okay? तुम काफ़ी चीज़ें तुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम काफ़ी चीज़ें तुम यूज़ करते हो, है ना, हैंडल करते हो. सो सम ऑफ देम आर हॉट. लाइक इफ़ यू ड्रिंक मिल्क तो हम हमेशा यूजुअली हम हॉट मिल्क प्रेफर करते हैं, है ना, वार्म मिल्क. एंड कोल्ड मीन्स कोल्ड वाटर. सो लाइकवाइज यू हैंडल मैनी थिंग्स विच यू कैन कैटेगराइज एज हॉट and cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. Okay, यहाँ पे लिस्ट दे रखी स्पून इन अ टी कप. वो हमारा कोल्ड होता है कि हॉट होता है, दैट यू विल हैव टू टिक. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. Okay, तो हमेशा जो जो चीज़ें हॉट होती हैं हम उसको कभी भी अपने हाथों से निकेड हैंड से हमको उसको हैंडल नहीं करना चाहिए. वी शुड यूज़ सम टोंग्स. यू कैन यूज़ टोंग्स और हैंडलर्स टू हैंडल द हॉट यूटेंसिल्स और हॉट ऑब्जेक्ट्स. ओके, we see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. है ना, कुछ चीज़ें किसी से ज़्यादा हॉट होती हैं. अगर तुम गरम गरम चाय बना के लेके आ रहे हो, है ना, सो इट विल बी हॉटर देन द नॉर्मल वाटर और यू कैन से नॉर्मल मिल्क. ठीक है, और कुछ चीज़ें बहुत ठंडी होती हैं. अगर तुम आइसक्रीम निकालते हो फ्रीज़र में से सो इट विल बी मोर कोल्डर देन अदर थिंग्स विच विल बी केप्ट आउटसाइड द फ्रिज. ओके, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. अब तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है? बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या वो रिलायबल है हमारा टच? लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 4.1. Take 3 small tubs or you can say containers. Label them as A, B and C. Put cold water in mug A. तुमने A कंटेनर में कोल्ड वाटर डाला.
बी कंटेनर में तुमने हॉट वाटर डाला. देन मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी. ओके, मग सी में क्या किया हमने, आधा कोल्ड और आधा हॉट पानी हमने उसमें ले लिया. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए. अब अपना लेफ्ट हैंड जो है वो मग ए में डालो एंड द राइट हैंड इन मग बी, और अपना राइट हैंड जो है वो मग बी में डालो. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, है ना. अब दोनों में क्या करना है, तुमको 2 से 3 मिनट तक अपने हाथ को रखना. रिमेंबर कि जो तुम हॉट वाटर ले रहे हो वो इतना भी हॉट नहीं हो कि तुम्हारा हाथ जल जाए. ओके, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी. अब क्या करोगे, तुमने दोनों हाथ को, एक लेफ्ट हैंड को तुमने कोल्ड में रखा है, राइट हैंड को तुमने हॉट वाटर में रखा है. फिर 2-3 मिनट्स के बाद उसको अपने हाथों को निकाल के तुम जो सी मग है और सी कंटेनर है उसके अंदर डालो. डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या तुमको दोनों हाथ सेम फील होगा. यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम एंड टेल मी कि क्या रिजल्ट है. ओके, बुजूस कन्फ्यूजन shows that we cannot always rely on our sense of touch. Okay, बुजू ने देखो क्या बोला ब्लू में. See, Buju says my left hand tells me that the water in mug C is hot. है ना, लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ था, ठंडे पानी में था, उसकी वजह से हमारा हाथ ठंडा हो गया. लेकिन जब वो नॉर्मल में गया, नॉर्मल वाटर में, तो उसको वो पानी थोड़ा गर्म लगा. राइट हैंड हमारा गर्म पानी में था और अब वो नॉर्मल में गया तो उसको वो पानी ठंडा फील हो रहा था. तो क्या हम अपने सेंसेस पे रिलाई कर सकते हैं टू जज दैट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? नो. सो समटाइम्स इट मे डिसीव अस. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? ओके, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Okay, so it is the definition of temperature. Reliable measure of the hotness. कोई चीज़ कितनी गर्म है, हम हमेशा टेम्परेचर जो है वो उस हॉटनेस के टर्म्स में लेते हैं. ओके, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ मीन्स इट इज़ मोर हॉटर, टेम्परेचर लो होता है तो इट इज़ कोल्डर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके, हमको फीवर होता है तो वी गो टू डॉक्टर एंड दे यूजुअली मेजर आवर टेम्परेचर बाय यूजिंग थर्मोमीटर. नाउ मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. Now I think everyone is having a thermometer at home also. You can see how it looks like and you can check your temperature also. Just take the help of your parents to note down the readings. Okay, the thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. Okay, so in this chapter we will learn about 2 types of thermometer. एक जो थर्मोमीटर जिससे हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. ओके, अगर घर में यू आर हैविंग थर्मोमीटर, अगर नॉर्मल जो थर्मोमीटर होता है, नॉट डिजिटल वन, ओके, तो यू कैन जस्ट गो एंड सी उसके अंदर की क्या बाइफर्केशंस होती है, क्या रीडिंग्स होती हैं और उसके अंदर क्या होता है. ओके, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2. ठीक है, 4.2 में हमको थर्मोमीटर का ड्राइंग दे रखा है तो दैट यू कैन सी. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. इफ़ यू विल सी द डायग्राम केयरफुली, तुम्हें उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब दिखेगा, ग्लास ट्यूब है एंड इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. उसके एक एंड पे बल्ब होता है. दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी. उस बल्ब के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी. आउटसाइड द बल्ब a small shining thread of mercury can be
सीन। उस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होता है और उसके आउटसाइड द बल्ब एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी होती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। ओके, उसको तुम रोटेट करके तुम देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट मर्क्यूरी थ्रेड। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। स्केल्स होता है ना, जिसपे मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ओके, मोस्टली हम जो टेम्परेचर हम अपना जो मेजर करते हैं, ओके, बाय यूजिंग एनालॉग थर्मोमीटर, नॉट डिजिटल वन, तो उससे क्या, उसमें क्या होता है, सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर दिखाता है। ओके, नाउ सी, बुजू वंडर्ड which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale, है ना, हम हमेशा Celsius scale use करते हैं. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. If you will see the thermometer carefully, तुम्हें वहाँ पे दोनों टाइप्स की रीडिंग्स दिखेंगे, सेल्सियस स्केल भी और फ़ारेनहाइट स्केल भी. तो वी यूजुअली मेजर दी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ओके, इट वॉज इन यूज़ अर्लियर. हम फ़ारेनहाइट स्केल जो था हम पहले यूज़ करते थे. नाउ वी यूज़ डिग्री सेल्सियस. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. It can come as your fill-ups. Now see activity 4.2, reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. अगर तुम टेम्परेचर ध्यान से देखोगे थर्मोमीटर, तो वहाँ पे जो दो बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमको पहले देखना पड़ेगा. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स. उसके अंदर कितना डिविजन्स है बिटवीन दीज मार्क्स. सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5, that is 0.2 degree Celsius, है ना. मतलब कि अगर दोनों के बीच में कितना डिवीजन है, टू बिगर उसके बीच में, अगर सपोज क्या बोल रहे हैं कि बिगर मार्क्स रीड 1 degree 1 degree रीड कर रहा है और उसके बीच में 5 डिविजन्स हैं, तो एक स्मॉल डिवीजन कितना होगा, 0.2, 1/5 करेंगे ना. एक बड़ा 1 है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना हुआ, 0.2. वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. ओके, मोस्ट प्रेफरेबली यू शुड वॉश द थर्मोमीटर with Dettol, this dilute solution of Dettol, so to avoid any error. Okay, while you measure the temperature, hold it firmly and give it a few jerks. हम उसको थोड़ा झटकते हैं, है ना, तुमने देखा होगा डॉक्टर्स को पहले थर्मोमीटर को थोड़ा सा वो झटकते हैं, हाथ से जर्क्स देते हैं. द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन. ओके, Ensure that it falls below 35 degree Celsius. जब तक तुम्हारा मर्क्यूरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना चले जाए तब तक you cannot use thermometer to measure the correct hotness or coldness of an object. Okay. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. अब जो बल्ब होता है ना, बल्ब क्या होता है, जो सिल्वर लाइनिंग जो तुम देख सकते हो, है ना, सबसे लास्ट में जो प्रोब टाइप का होता है, पेंसिल की निप की तरह, है ना, वो, तो उसको तुम क्या करोगे, मुंह में डालोगे टंग के नीचे. आफ्टर 1 minute टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. ठीक है, आफ्टर यू हैव टू जस्ट कीप द थर्मोमीटर फॉर 1 minute अंडर योर टंग टू मेजर द टेम्परेचर. ठीक है, एंड नोट द रीडिंग. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. The temperature should always be stated with its unit, degree Celsius. What did you record as your body temperature? आपकी body temperature क्या होगी, that you will see in the thermometer's reading. The normal temperature of human body is 37 degree Celsius. Note that the temperature is stated with its
यूनिट, है ना। हमारा हमेशा कितना होता है टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट, ओके। पहेली measured her body temperature, she got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। उसको थोड़ा डर लगा, क्या होगा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ना। Let us try to assure Paheli that there is nothing wrong with her. Now see activity 4.3. Before going to activity 4.3, you can see pink colored box above, that it is written precaution to be observed while using a clinical thermometer. Means what are the precaution you should take while using the clinical thermometer to measure the temperature of your body. Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. Ensure that before use the mercury, before use the clinical thermometer, your mercury level should be below 35 डिग्री सेल्सियस, है ना. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. मतलब हमको हमेशा थर्मोमीटर जो है बिल्कुल सामने रखना चाहिए, हमारे आईज के बिल्कुल स्ट्रेटली रखना चाहिए. ऊपर नीचे रखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द करेक्ट रीडिंग. ओके. हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर. If it hits against some hard object, it can break. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. ठीक है, जब हम अगर बल्ब से हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर रीडिंग होगी उसमें एरर्स आ सकते हैं. इट विल अगेन start taking the temperature of that body or that object in contact with the bulb. Okay. Now see activity 4.3. Measure the body temperature of some of your friends with a clinical thermometer. Record your observation as in table 4.2. अपने फ्रेंड्स के 10 फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर लो और उसके बाद यू हैव टू जस्ट fill the table which is given on page number 37, table 4.2. You will write the name and his or her temperature. Okay. Is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस? क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा? The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस. सबका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है. It could be slightly higher or slightly lower. Okay. Actually what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person, है ना. हम क्या करते हैं, हम out of 100 80 और 70% के टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. तो दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव डिसाइडेड कि येस एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा उससे कम भी हो सकता है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, है ना. तुम उससे कुछ और किसी और के टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते. Temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius and above 42 degree Celsius. That is the reason that this thermometer has the range 35 degree to 42 degree Celsius. So it can be asked as your question कि why the thermometer, clinical thermometer is having the range from 35 degree to 42 degree Celsius. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो तुम क्या लिखोगे, because the human body temperature does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. Okay. Now see, Buju got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. Paheli stopped him from doing so, है ना. तो you also don't ever try to use clinical thermometer to measure the temperature of hot liquid or you can hot utensils. Okay. Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break, है ना. क्योंकि हमारा जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो रेसिस्ट करेगा. उसके बाद अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो एट सम पॉइंट इट विल ब्रेक.
और हमारा दूध जब बॉईल होता है, पानी का बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो दूध तक सोचो कितना होगा, है ना। तो that's why we should not use clinical thermometer to measure any liquid or any hot utensils. Now 4.3 laboratory thermometer. So far we have discussed about the clinical thermometer which we were using to calculate or to measure the temperature of human body. Now we will see laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. Okay, so I have shown you the picture of laboratory thermometer. Just see it carefully and you can see the lowest and highest temperature. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degree Celsius. उसको मार्क कर लेना, ये दोनों जो रेंजेस है हमारी क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, they are very important and can come as your objective type questions. Okay. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. Okay, तो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में कितने सब डिविजन्स थे, 5. अब इसमें कितने हैं, दैट यू विल हैव टू सी. यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, है ना. 5 डिवीजन था तो हमने 1/5 किया. यहाँ पे जितना डिवीजन होगा तो हम क्या करेंगे, 1/अपॉन दैट नंबर ऑफ सब डिविजन्स. ओके, लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड. हम उसको कैसे यूज़ करते हैं. बिफोर दैट, फर्स्ट सी द बॉक्स, ब्लू बॉक्स गिवन ऑन टॉप on page number 38 only. Different types of thermometers are used for different purposes. Okay, समझ में आया. क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर ह्यूमन बॉडी एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर measuring the temperature of utensils or some other liquids. Okay, maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. देखो अब 3 थर्मोमीटर हो गए, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर ह्यूमन बॉडी, लेबोरेटरी फॉर ऑब्जेक्ट्स, हॉट ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से लिक्विड्स, एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे. ओके, now see activity 4.4. Take some tap water in a beaker or a mug. टैप वाटर, नॉर्मल वाटर तुम नल का पानी मग में ले लो या बीकर में ले लो. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom of the or the sides of the container. है ना. तुम एक जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम मग के अंदर डालेंगे in such a way कि it should not come in contact with the bottom or side of the mug or container. Hold the thermometer vertically, एकदम सीधा vertical position में तुमको रखना है. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. Okay, तो अब तुमको तब तक देखना है जब तक mercury thread becomes steady, मतलब एक पर आकर के वो रुक जाए. Note the reading. This is the temperature of water at that time. Now compare the temperature of water recorded by each student in the class. So if you were in the school, we would have done this activity. Okay, are there any variation in the readings? Discuss the possible reasons. अगर readings में changes है तो क्यों है, क्या किसी ने अलग नल से पानी लिया है या फिर तुमने फ्रीज़र वाला पानी यूज़ किया है और किसी ने नॉर्मल टैप वाटर का यूज़ किया हो, है ना, या फिर किसी ने स्टील बेस्ड बॉटल में से पानी लिया हो. मतलब देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर द वेरिएशन इन द मेजरमेंट एंड द रीडिंग्स. ओके, सी ब्लू कलर्ड बॉक्स अबव on page number 39.
In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम यूज़ कर रहे थे प्रिकॉशंस विच यू वर टेकिंग, है ना, इन एडिशन टू दैट, वो तो लेना ही है आपको, उसके साथ और कौन से 2 मेजर प्रिकॉशंस है दैट यू विल हैव टू फॉलो, विच यू हैव टू टेकन केयर, ओके, वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, एकदम सीधा रखना है, टिल्ट नहीं करना है उसको. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड, है ना. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब होगा नीचे का, है ना, वो अगर हम सपोज वाटर का ले रहे हैं टेम्परेचर, तो वो पूरा का पूरा पानी के अंदर सबमर्ज होना चाहिए, पूरा अंदर अंदर हो जाना चाहिए पानी के अंदर, ओके. द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, वो सिर्फ पानी के अंदर होना चाहिए, बट वो सरफेस जो होता है साइड्स एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर उसको टच नहीं करना चाहिए, ओके. नाउ सी एक्टिविटी 4.5. टेक सम हॉट वाटर in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and know the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? है ना. अगर तुम गर्म पानी लेके रखते हो, उस पर तुमने थर्मोमीटर डाला तो क्या होगा, इट्स टेम्परेचर विल बी ऑब्वियसली, इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्म पानी का, है ना, तो क्या होगा, हमारा थर्मोमीटर की रीडिंग वो बढ़ेगी. एंड एज सून एज यू टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द मग, ओके, तो क्या होगा, द मर्करी, द लेवल ऑफ मर्करी विल स्टार्ट फॉलिंग. दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, ठीक है. इसीलिए हमेशा जब हमारा मर्करी एक स्टीडी स्टेट पर आ जाए, स्टिल हो जाए मर्करी का थ्रेड, है ना, तो तभी हमको रीडिंग ले करके तभी हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पानी से बाहर लाना चाहिए. बिकॉज अगर हम पानी से बाहर लेकर आते तो तुरंत ही उसका मर्करी लेवल गिरना चालू हो जाता है. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? तो तुम क्या अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हो बॉडी टेम्परेचर के लिए? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. वो इतना बड़ा, इतना मोटा होता है that you can not use or you cannot hold, okay, below your tongue, है ना, under your tongue you cannot hold that laboratory thermometer. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? क्यों नहीं होता है? इसका आंसर तुम मुझे बताओगे. Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? वापस तुम क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखो. देखो यहाँ पे दिया फिगर 4.6 में किंक है. किंक मतलब हल्का सा उसका उठा हुआ है ना, प्रोजेक्शन है. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? क्या यूज़ है उसका? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. वो जो किंक होता है वो मर्क्यूरी लेवल को खुद से गिरने नहीं देता, मतलब टेम्परेचर पे फॉल होने नहीं देता. ओके. Now see, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days, digital thermometers are available which do not use mercury. तो हमारे जो पहले जो होते थे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते थे, है ना, उसमें मर्करी होता था. मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. अगर बाय चांस हमारे मुंह में अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. मर्करी, उसे इवन अ पर्सन कैन डाई. तो इसको देखते हुए क्या किया, नाउ वी आर हैविंग डिजिटल थर्मोमीटर्स बाय विच वी कैन मेजर द ह्यूमन टेम्परेचर. ओके, एंड इट इज़ हैविंग, डू नॉट हैव मर्क्यूरी. नाउ 4.4, that is transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. है ना, हम कोई फ्राइंग पैन रखते हैं अगर फ्लेम पर गैस ऑन करके तो तुरंत ही वो गर्म होने लगता है. ठीक है.
इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. जो आग का फ्लेम होता है उसमें से वो यूटेंसिल में हीट पास होना चालू हो जाता है. व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. ओके, व्हाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग. ठीक है. अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल ले लो. अगर तुम सर्दियों में क्या करते हैं, हम कभी कभी अपने फ्रेंड्स, अगर जो फ्रेंड थोड़े गर्म होते हैं, है ना, जिसका कभी हाथ या हाथ कुछ गर्म होता है तो हम उनको टच करते हैं अगर हम ठंडे हो तो. वाई? सो दैट वी कैन टेक द हीट ऑफ, वी कैन एब्जॉर्ब द हीट ऑफ आवर फ्रेंड, है ना, एंड यू विल फील कंफर्टेबल. तो क्या होता है, कभी भी हमारे ऑब्जेक्ट हो या फिर बॉडी हो, there is a tendency that we can transfer the heat, we can exchange the heat to and from the surrounding. अब हमारा पैन जो है यहाँ पे वो गर्म है और हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इट इज़ मच लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ पैन. तो पैन क्या करेगा, हीट रिलीज़ करेगा. ठीक है. और सराउंडिंग जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी. कब तक? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए. ओके, बैलेंसिंग. अभी हमने पढ़ा था सिंपल इक्वेशन. तो हमारा जो नेचर होता है वो भी हमारा हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है, बैलेंस करता है. ठीक है. नाउ सो यू कैन अंडरस्टैंड बोथ दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है. हमेशा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है. ऐसा तो नहीं होता है तुम ठंडे हो और तुम अपनी हीट और अपने फ्रेंड को दे रहे हो और तुम और ठंडे हो गए. ऐसा तो नहीं होता है ना. अगर तुम फ्रेंड को छू रहे हो हु इज़ कंपेरेटिवली वार्म और हॉटर देन यू, तो तुमको हीट उसमें से मिलती है. ऐसा नहीं कि तुम उसको ठंडी देते हैं, है ना, उसमें से हीट मिलती है. मीन्स दैट योर फ्रेंड इज़ रिलीजिंग द हीट फ्रॉम इट्स बॉडी. ओके. नाउ सी, पहेली आस्क, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two object is the same? तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो तो. नाउ सी, हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट. ओके. एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल. हमने एक रॉड ले लिया यहाँ पे या फिर एक स्ट्रिप लिया मेटल का. ठीक है, प्लास्टिक का नहीं, मेटल का. से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड. थोड़े से स्मॉल जो वैक्स के पीसेज हैं, है ना, तोड़ के तुम वहाँ पे लगा सकते हो, उसको अटैच कर दो, चिपका दो रॉड पे. दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. सबका डिस्टेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. फिर उस रॉड को एक स्टैंड से तुम उसको खड़ा कर सकते हो. यू कैन सी इन द फिगर 4.7. बिल्कुल वैसे ही करना है अरेंजमेंट. ओके. यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड. अब जो अदर एंड है रॉड का उसको हीट करना चालू करो, गर्म करना. एंड ऑब्जर्व what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? क्या वो fall होने चालू हो जाएंगे wax के pieces? Which piece falls the first? ठीक है. पहला क्वेश्चन, क्या wax का पीस fall होना चालू हो जाएगा? Yes, it will start melting. As soon as that point where the wax is, you have just place the wax. तो वहाँ पे जब तक हीट आएगा तो दैट हीट विल स्टार्ट मेल्टिंग द वैक्स. मीन्स वैक्स स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द रॉड एंड इट मेल्ट्स. ठीक है, ये फर्स्ट था. ओके, उसके बाद विच पीस फॉल्स द फर्स्ट. कौन सा वैक्स जो है, कौन सा पीस है वैक्स का जो पहले गिरेगा. विच इज़ नियरर टू द फ्लेम. डू यू थिंक that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? है ना. क्या तुमको ऐसा लगता है कि हीट हमेशा कहाँ से पास होती है? नियरेस्ट एंड टू द फारदेस्ट. अगर सपोज तुम
एक रॉड यूज़ करो, रॉड को तुम गर्म करोगे, है ना, तो तुम्हारा जो रॉड जो एग्जैक्टली फ्लेम के अंदर है वो पहले गर्म होगा और जो उसका फादर पॉइंट है वो बाद में गर्म होता है ना. तो दैट मीन्स हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट टू द flame to the farthest point. Okay, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Okay, तो जब heat जो transfer होती है from nearest to farthest point, okay, from one point to another or you can say from hotter end to the colder end, तो उस process को बोलते हैं हम conduction. Conduction, you can say it is a contact process of exchanging of heat. Okay, in solids generally the heat is transferred by the process of conduction. ठीक है, solids में ज़्यादातर conduction के through heat transfer होता है. Do all substances conduct heat easily? क्या सभी substances को heat easily conduct करते हैं? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle, है ना. You can take an example of cooker also, pressure cooker. उसकी जो body होती है either it is of aluminium है ना, और iron, और जो उसका handle होता है वो plastic और some wooden handle होता है. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? क्या तुम कैसे प्रेशर कुकर को कैसे उठाते हो? बाय यू कैन जस्ट प्लेस योर हैंड ऑन दी हैंडल, है ना. ऐसा तो नहीं करता ना कि एल्यूमिनियम जो बेस है उस वहाँ से उठाते हो कुकर को जब वो गर्म होता है, नहीं. सो दैट मीन्स ऑल दी सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट हीट ईजीली. ओके, नाउ सी एक्टिविटी 4.7. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. पानी को गर्म करो पैन और बीकर में. कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर. तुमने आर्टिकल्स तुमने लिए, प्लास्टिक का लिया, वुड का लिया और मेटल का लिया. ठीक है, उसको तुमने उस हॉट वाटर में डाला, एक एंड को हॉट वाटर में डाला. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. अब तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो, थोड़े कुछ मिनट्स के लिए. टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. सो दिस एक्टिविटी यू विल परफॉर्म एट होम. इट इज़ ईजियर. बस पानी को गर्म करो और उसमें एक वुड का, एक प्लास्टिक का और एक मेटल का सब्सटेंस उसको पुट करो. And then wait for some few minutes, and then after that you just touch the other end of that substance. ठीक है, तुमको क्या फील होता है that you will have to write. Suppose एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टील स्पून है, किससे बना हुआ है? मेटल से बना है. तो does the other end get hot? हॉट होगा, yes. तो likewise you will have to measure the temperature. You have to feel the temperature in wooden pencil and plastic scale, and then you will have to write whether the other end is hot or cold. The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जिनके जो बॉडी सॉलिड बॉडी होती है जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, पास हो सकता है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. एंड फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. मोस्टली ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, the material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood. Okay, जब तुम टच करोगे वुड और प्लास्टिक को तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस कि अगर वो ठंडा रहता है दैट मीन्स वुड और प्लास्टिक हीट को अलाउ नहीं करता है टू पास थ्रू इट. Poor conductors are known as insulators. The water and air are poor conductors of heat. ठीक है, solid is a good conductor of heat whereas water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? अगर ये poor conductor होते हैं तो उनमें से heat कैसे transfer होता है? See activity 4.8. Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be
used. Okay, fill it 2/3 with water. उसमें 2/3 पानी डाल दो. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. क्या किया हमने, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें 2/3 जितना पानी डाला, फिर वो जब तक स्टिल होगा फिर बाय यूजिंग द स्ट्रॉ यू हैव टू पुट पोटेशियम परमैंगनेट, एक क्रिस्टल जो है उसका उसके अंदर डालना है. देन यू विल हैव टू स्टार्ट हीटिंग द वाटर. क्या दिखेगा, दैट यू विल हैव टू राइट इन योर नोटबुक. व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. है ना, जो पानी नीचे का पानी होगा, नीचे लेवल का होगा पानी, तो वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा. तो हॉट वाटर राइजेज अप, जो हॉट वाटर नीचे का होता है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. ठीक है, एक सर्कल के फॉर्म में वो मूव करेगा. नीचे से जो हॉट वाटर है बीइंग लाइटर इन वेट वो ऊपर जाएगा, और जो कोल्ड वाटर बीइंग डेंसर, ओके, वो ज़्यादा डेंसर होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा टू एब्जॉर्ब द हीट. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज up and water from the sides move down. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, this process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. हम क्या बोलते हैं उसको, convection. convection मतलब जो हॉट है, हमारा हॉट वाटर है, बीइंग लाइटर एंड लेस डेंसर इट इज़ मूविंग अप, और जो कोल्ड वाटर है इट इज़ टेकिंग द प्लेस ऑफ हॉट वाटर इन द बॉटम of the flask. Okay, how does the heat travel in air? In which direction does the smoke go? ठीक है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है अब एयर में, दैट वी विल सी. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. ठीक है, the air from the sides come in to takes its place. In this way the air gets heated. The following activity confirms this idea. ठीक है, तो जो एयर होती है हमारे, अगर फ्लेम के पास में जो एयर है वो गर्म होती है तो क्या करती है वो, इट स्टार्ट मूविंग अप, और उसकी जगह कौन लेता है, जो ठंडा एयर है जो ऊपर है, दूर है, विच इज़ फार फ्रॉम द फ्लेम. तो इट विल स्टार्ट टेकिंग द प्लेस ऑफ हॉटर एयर. ओके, so in this way the air gets heated. You can say it is also due to the process of convection. Now see activity 4.9. Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. फ्लेम के एक साइड में रखो अपना हाथ और एक जस्ट उसके ऊपर. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या तुम्हारे दोनों हाथ सेम उतनी गर्मी फील करेंगे? इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर. कौन सा हाथ को ज़्यादा गर्म लगेगा? द वन विच इज़ डायरेक्टली अबव द फ्लेम. है ना, क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है. बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्नड. ओके, एकदम पास में मत रखना फ्लेम के, नहीं तो हाथ जल जाएगा. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. Therefore the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, coastal areas जहाँ पे sea भी होता है, sea and land. Okay, during the day the land gets heated faster than the water. हमेशा याद रखना जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है. तो दिन के टाइम में क्या होता है, सन होता है, और सन क्या करेगा, इट विल हीट अप द लैंड एज वेल एज वाटर. बट लैंड और वाटर में सबसे फास्ट कौन गर्म होगा, लैंड होगा. ओके, सो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. तो जो एयर हमारा जो लैंड के पास है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और वो
ऊपर की तरफ मूव करेगा. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक्स इज प्लेस. तो जैसे वो ऊपर जाएगा, जो सी का एयर होगा, it will take the place of hotter air. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. ठीक है, जो warm air है during day, warm air from land will move towards sea. Land to sea, ये याद रखना, land to sea during the daytime. The air from the sea is called sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. इसीलिए उनके जो coastal areas के windows होते हैं ज़्यादातर वो sea facing होते हैं, so that they can get the cooler air which is coming from the sea. At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. ठीक है, अभी मैंने बताया था लैंड जल्दी ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है. तो दिन के टाइम पे जल्दी गर्म हुआ तो हवा कहाँ से जा रही है, फ्रॉम लैंड टू सी, और रात के टाइम वो जल्दी कूल हो जाता है. अब गर्म कौन है, सी का पानी गर्म है. सी वाटर इज़ मोर हॉटर देन द लैंड. तो एयर कहाँ से जाएगा, फ्रॉम सी टू लैंड, तो हम उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज. सी ब्रीज डे के टाइम में और लैंड ब्रीज रात के टाइम पे. ठीक है, when we count out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. है ना, अर्थ और सन के बीच में एयर नहीं होता है. हमारा वो एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होता है ना. तो हमको हीट सन से कैसे मिलता है, from the sun the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. ध्यान रखना, कन्वेक्शन और कंडक्शन में वी रिक्वायर मीडियम, है ना. कंडक्शन में सॉलिड था और कन्वेक्शन में हमारा वाटर एंड एयर था. बट रेडिएशन में वी डोंट नो नीड टू यूज़ एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil keep away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. सर्दी में क्या होता है, नॉट हियर इन गुजरात, बिकॉज गुजरात में तो ठंडी नहीं होती है, लेकिन सपोज इन नॉर्दर्न पार्ट्स वहाँ पे पीपल यूज़ हीटर्स, रूम हीटर्स. ठीक है, रूम हीटर्स कैसे काम करता है, एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, है ना. वो हीट रेडिएट करता है एंड दैट रेडिएशन वी आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स. ओके, दैट हीट आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स. Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. गर्मी के टाइम हमारी बॉडी को स्वेटिंग होती है, दैट मीन्स इट इज़ रेगुलेटिंग द टेम्परेचर. क्या करता है, इट ट्राइज टू जस्ट रिलीज द हीट फ्रॉम द बॉडी. और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो और सराउंडिंग का ज़्यादा हो तो आवर बॉडी विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and part may be transmitted. ठीक है, हर एक बॉडी हीट रेडिएट करती ही है, बट उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है. रिफ्लेक्ट मतलब सन की जो रे है, अगर वो हम सन रे जब हमारे अर्थ में एंटर होती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, अगेन वो स्पेस में चला जाता है. कुछ पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है उसका हीट, और कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट होता है. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट. जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड होता है उससे हमारे ऑब्जेक्ट्स गर्म नहीं होते हैं. किससे होते हैं, जितना वो हीट उस एब्जॉर्ब कर लेता है. वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. क्यों एडवाइज़ करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी क्या करती है, इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट, है ना. इसलिए हमको अम्ब्रेला, वी प्रेफर अम्ब्रेला ड्यूरिंग द दिस समर टाइम व्हेन यू गो आउट इन द सन.
so that you will not absorb that much heat from the surrounding. उतना तुम हीट अगर डायरेक्टली तुम हीट लोगे तो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी, है ना. तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस you can fall sick. Now 4.5 kinds of clothes we wear in summer and winter. You know that in summer we prefer light colored clothes and winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. Activity 4.10. Take two identical tin cans. Identical मतलब बिल्कुल सेम. टिन कैंस देखो, कॉफ़ी हम पीते हैं अमूल कॉफ़ी, दोनों टिन्स होती हैं, तुम 2 टिन ले सकते हो वैसा. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक और एक का वाइट. एक को ब्लैक कलर कर दो, एक को वाइट कलर कर दो. पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम. दोनों में सेम अमाउंट का पानी भरो और उसको छोड़ दो. इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर. 1 घंटे के लिए उसको बाहर छोड़ दो सन में. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperature? In which can is the water warmer? किस में गर्म ज़्यादा होगा? You can feel the difference even by touching water in 2 cans. देखो कितने easy activities हैं which you can do at your home. ठीक है, जो करो और just मुझे बताओ कि तुमने किया है कि नहीं. Okay, give your feedback. Now activity 4.11. Fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature. ठीक है, पहले हमने कोल्ड वाटर लिया था, नॉर्मल वाटर या फिर कोल्ड वाटर लिया था. अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हॉट वाटर ले रहे हैं और सेम कंटेनर में तुमको डालना है. लीव द कैंस इन अ रूम और इन शेड. अब तुम पहले हमने धूप में रखा था, अब हम जो है कैंस को रखेंगे शेड में for 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? क्या सेम अमाउंट में टेम्परेचर जो है वो रिलीज़ करेंगे दोनों कंटेनर्स? So that you will have to see after conducting the activity. Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white and light colored clothes in the summer and dark clothes in the winter? Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter, है ना. डार्क कलर क्लोथ क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट, सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को वो हीट देते हैं. ठीक है, लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, दे आर द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, सो इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन द समर. Woolen clothes keep us warm in winter. In the winter we use woolen clothes. It is a poor conductor of heat. हीट को वो कंडक्ट नहीं करता है. मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग. मैंने स्टार्टिंग में बताया तुमको कि वुलन फाइबर्स जो होते हैं दे आर द गुड इंसुलेटर्स और वो हमारी बॉडी के हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने नहीं देते हैं. दैट्स वाई वी फील वार्म. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or 2 thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air between the blankets. सोचो, एक तुमको मोटा सा ब्लैंकेट दे दिया और दूसरे में क्या किया, 2 ब्लैंकेट दिया है जिसको तुमको यूज़ करना है, 2 थिन ब्लैंकेट. तो वी शुड प्रेफर 2 थिन ब्लैंकेट्स. वाई? बिकॉज जो 2 थिन ब्लैंकेट के बीच में क्या है, एक लेयर एयर की भी है, हवा की है. हवा इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो होती है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो क्या होगा, हमारी बॉडी के हीट को वो रिलीज़ होने नहीं देगा और बाहर के जो कोल्ड है ना, कोल्ड टेम्परेचर को वो अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने नहीं देगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4. ठीक है, नाउ आई विल गिव यू एक्सरसाइज, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज इन द क्लासरूम. Okay, so today yesterday you have got exercise of SS in classroom. Likewise I'll assign you the homework and exercise solution in the classroom only. Thank you.